Good morning, good afternoon, good morning, and good evening to everyone. Thank you for joining this WHO Wednesday गुड webinar मॉर्निंग, on the गुड topic of आफ्टरनून, गुड Zika मॉर्निंग virus, और learning सभी from the को गुड past, preparing इवनिंग। for the future, hosted by WHO EpiWin team. इस विषय For पर those new WTO to बुधवार EpiWin, के इस we are वेबिनार में शामिल WHO होने के लिए Information Network धन्यवाद। for epidemics, जिका वायरस के science बारे and में knowledge अतीत से communication सीखना को network. द्वारा मेजबानी किए जाने This वाले EpiWin भविष्य के लिए webinars and तैयारी associated HPV में नए webinars, लोगों के our लिए goal is EPI to टीम। translate science in accessible, यह understandable, आपातकालीन and स्थिति में relevant विज्ञान ways और for ज्ञान के everyone to अनुवाद के inform लिए actions and महामारियों के लिए decisions WHO in सूचना health नेटवर्क emergency है। preparedness and response. हम वेबिनार और Today, we have एसोसिएटेड three डाइजेस्ट के बीच panels to फैसला discuss करते हैं। Zika, हमारा लक्ष्य विज्ञान का cybersecurity, सुलभ and में global अनुवाद करना है, information. सबूत के Our लिए speakers समझने योग्य today और are प्रासंगिक तरीके। Dr. Sylvie Briand, आपातकालीन तैयारियों Director और for प्रतिक्रिया में Epidemics कार्रवाई and और निर्णय के Emergency बारे में सूचित Preparedness किया। and Prevention at WHO. आज जिका Dr. पर चर्चा Maria करने के लिए हमारे Barreto, पास एक Unit बेहतरीन Head पैनल है। for मैं संक्षिप्त Emerging परिचय दूंगा। Diseases and Zoonosis Unit आज in हमारे वक्ता WHO. डॉ सिल्वी ब्रायन को Dr. में महामारी Diana और महामारी की Gonzalez, तैयारी और रोकथाम के Technical निदेशक Lead डॉ for Zika, and she मारिया sits वैन one केरखोव block इमर्जिंग in डिसीज में the यूनिट है Emerging और Diseases and WHO में Zoonosis Unit जूनोसिस in यूनिट डॉ WHO. डायना रोचा अल्वारेज। Dr. Sudat जिका और वह Samarakoa, ग्वामवा के Regional लिए तकनीकी Consultant नेतृत्व on Arbovirus within the WHO की WHO उभरती Regional Office in बीमारियां और South Korea. जूनोसिस यूनिट डॉ Dr. um, सुदत्त समरवीरा Dr. Judith आर्बोवायरस Wong, पर Director क्षेत्रीय in सलाहकार। Microbiology दक्षिण and पूर्व एशिया Molecular के लिए WHO Epidemiology के at the क्षेत्रीय Michel कार्यालय के Clement भीतर डॉ Island माफ of करना Singapore. डॉक्टर जूडिथ वोंग Mrs. Thais dos Santos, माइक्रोबायोलॉजी और Advisor on मॉलिक्यूलर में निदेशक Surveillance and Control for सिंगापुर Arbovirus की Disease राष्ट्रीय located पर्यावरण at एजेंसी में महामारी विज्ञान Tropical and श्रीमती थायस Vector-Borne डॉस सैंटोस Diseases Unit, Pan American Health आर्बोवायरस Organization, रोगों के लिए and निगरानी और Director नियंत्रण के सलाहकार की उपेक्षा की Dr. गई ट्रॉपिकल एंड वेक्टर Ricardo बॉर्न डिसीज Jimenez, यूनिट में Epidemiologist and Professor of Tropical Medicine, पैन अमेरिकन हेल्थ Federal University of ऑर्गेनाइजेशन और Pernambuco निदेशक in और डॉ Recife, Brazil. रिकार्डो गिमेनेज The Q&A will be moderated by Dr. Diana एपिडेमियोलॉजिस्ट और Gonzalez. फेडरल Keynote यूनिवर्सिटी में speaking ट्रॉपिकल now, मेडिसिन के प्रोफेसर when there रेसिफ will में be live पेरनाम्बुको का streams on the EpiWin ब्राजील YouTube channel. प्रश्नोत्तर का This संचालन webinar is डॉक्टर being डायना recorded रोजास and अल्वारेस करेंगे। afterwards the recording सोमोस will be कीपिंग नाउ available दिस on वन our डिनर का website लाइव on the स्ट्रीम किया जा रहा है WHO एपी chat. विंग का यूट्यूब चैनल। Interpretation is available today in French, इस Spanish, वेबिनार को Portuguese, रिकॉर्ड and किया जा रहा Arabic. है और उसके Rules बाद रिकॉर्डिंग for हमारी वेबसाइट participation पर in उपलब्ध English, होगी, पता चैट text में and दिखेगा। caption are also available to इंटरप्रिटेशन आज participants फ्रेंच intelligently. स्पेनिश में उपलब्ध है, Please go पुर्तगाली to और the अरबी, interpretation globe icon to साथ ही access व्याख्या the हिंदी में भी language. है। We invite you आर्टिफिशियल all to post इंटेलिजेंस your के name, जरिए चीनी और location, and रूसी भी organization उपलब्ध in the हैं। chat box. We कृपया would एक्सेस love to करने hear और where भाषा did you चुनने के get लिए from. इंटरप्रिटेशन ग्लोब Please आइकन type पर any जाएं। हम आप questions you सभी को may अपना have नाम in the पोस्ट करने के लिए Q&A box आमंत्रित on करते the हैं। chat so चैट that we बॉक्स में can जगह और reply to your संगठन। questions. हमें यह सुनना अच्छा लगेगा कि Without आप हमारे further साथ कहाँ ado, से शामिल I हो will रहे हैं। hand the floor over to कृपया Dr. प्रश्नोत्तर बॉक्स Sylvie में जो भी Briand प्रश्न for हो उन्हें those जोड़ें new to the EpiWin बातचीत में webinar नहीं, ताकि on हम the आपके topic सवालों of के the जवाब Zika आसानी से virus, दे सकें learning बिना from the किसी और past, दिल के। preparing मैं for the फ्लोर खत्म future. करके डॉक्टर को सौंप दूंगा। इस विषय पर Thank you वेलकम टू very द much, ईपीपी विन वेबिनार के लिए Dr. सिल्वी ब्रायन जिका वायरस के बारे में Good अतीत से morning, सीखना good afternoon, and good भविष्य के लिए evening, तैयारी everyone. आपका बहुत बहुत धन्यवाद Welcome to this EpiWin डॉक्टर webinar on Zika virus और गुड disease. मॉर्निंग You may wonder why we chose सभी को this गुड subject for आफ्टरनून और गुड today, इवनिंग। but maybe जिका you वायरस रोग remember पर as इस well वेबिनार में आपका the स्वागत है। tragic epidemic of आपको Zika आश्चर्य virus हो in सकता है Brazil कि in हमने इस विषय को आज 2016. के लिए क्यों चुना, Personally, I लेकिन still शायद आपको remember वह with दुखद महामारी भी deep याद हो। sadness 2016 those में poor ब्राजील में जिका babies वायरस के that बारे were में born with निजी तौर पर neurodevelopmental defect and their mothers मुझे who had आज भी to भावनाओं carry और दुख them के and साथ वे to गरीब बच्चे याद हैं जो try to alleviate their suffering. न्यूरोडेवलपमेंटल इफेक्ट डिफेक्ट के It साथ has पैदा हुए also थे a और terrible उनकी माताएं impact on जिन्होंने families and communities उन्हें ले जाने के during लिए this और period. उन्हें दूर करने की So कोशिश करने के लिए Zika for us is an कष्ट important उठाना इसका public health परिवारों पर risk भी बहुत बुरा problem, असर पड़ा and है that's why और we उस thought it वर्ष was के important दौरान के also to bring समुदाय तो जिका together हमारे लिए जरूरी experts है। across the world to talk about it. Also, you need to know that Zika सार्वजनिक is a स्वास्थ्य virus that जोखिम is और transmitted समस्या by और इसलिए vectors, हमने and those सोचा कि vectors इसे are साथ Aedes लाना भी mosquitoes. जरूरी है। इस बारे में Those बात करने के लिए mosquitoes दुनिया भर are के अलग अलग very विशेषज्ञ साथ broadly ही distributed आपको यह जानना on होगा Earth, कि जिका एक वायरस especially है in जो tropical वेक्टर areas, द्वारा but फैलता है with the climate और change, वे वाहक I mean, एडीज this मच्छर है। distribution is वे slightly मच्छर बहुत changing, मोटे तौर and पर पृथ्वी also पर फैले there we हुए can हैं, see खासकर ट्रॉपिकल transmission इलाकों में। through Aedes लेकिन mosquitoes जलवायु also परिवर्तन in के the साथ American मेरा countries. मतलब है And you may also remember that recently यह we वितरण had थोड़ा the बदल रहा है pandemic और हम of ट्रांसमिशन भी देख सकते हैं chikungunya in एडीज मच्छरों के Uruguay जरिए and Paraguay, समशीतोष्ण and देशों में we भी। also have और currently आपको the यह भी Zika याद in होगा कि Kenya. हाल ही में हमारा
का प्रकोप बहुत बड़ा हुआ था। उरुग्वे और पैराग्वे में चिकनगुनिया की, और इस समय हमें अर्जेंटीना में डेंगू भी है। और तो रोग डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया, एडीज मच्छरों द्वारा भी फैलते हैं। तो हमारे लिए
protect ourselves against them. यही वजह है And I कि would यह like to जरूरी है thank कि really हम much सभी the और experts सीखें and my बीमारी के WHO बारे में वे colleagues कैसे फैलते joining हैं, this हम उनसे webinar अपनी today सुरक्षा to कैसे share कर their सकते हैं। knowledge, their expertise, मैं their विशेषज्ञों और experience अपने on this WHO को disease, बहुत बहुत धन्यवाद देना because चाहता this हूँ। will help us to be सहकर्मी better अपना ज्ञान protected. साझा करने के लिए And आज so I इस thank वेबिनार you से जुड़ all रहे हैं also, attending this EpiWin इस बीमारी webinar, पर because उनकी together विशेषज्ञता और we अनुभव, can make the world क्योंकि safer इससे हमें by सुरक्षा knowing बेहतर our तरीके से करने में risks मदद and by मिलेगी। matching them to वेबिनार, find और इसलिए मैं आप सभी को necessary धन्यवाद देता हूँ कि आप भी adequate इसमें शामिल हुए, preventive action. क्योंकि So साथ मिलकर thank you हम very अपने much जोखिमों को and जानकर और बिना congratulations, जरूरत के Agnes. उन्हें मैनेज करके दुनिया को सुरक्षित बना सकते हैं Thank बेवजह you, का डर, Dr. लेकिन पर्याप्त Sylvia, निवारक for this कार्रवाई के साथ। तो amazing आपका talk. बहुत बहुत And धन्यवाद now और I आपके give the ऊपर भी। floor to Diana to इग्नेस, start धन्यवाद डॉक्टर presenting सिल्वी ब्रायन इस शानदार स्वागत के लिए। about Zika and also to start moderating the और session. अब मैं डायना को Over फिश to देता हूँ you, ताकि वह Diana. पेश करना शुरू कर Thank you सके very much. Good morning, good afternoon, and good evening to जिका all. के बारे में और Let सेशन को me मॉडरेट करना start शुरू करने के showing a बारे में। video आपके बारे में with डायना, आपका बहुत the बहुत धन्यवाद। गुड overview मॉर्निंग, of गुड Zika, आफ्टरनून so और we गुड all इवनिंग remember सहकर्मी। the basic information about चलिए Zika. मैं इसके साथ एक Confirm वीडियो दिखाना शुरू that we करता हूँ, can जिका का अवलोकन। इसलिए हम सभी को इस बारे में see. मूलभूत जानकारी याद है। जिका, Give me 1 second. कृपया पुष्टि करें कि आप कर सकते हैं। Can you see the video दूसरा है, and the image? Yes, we can see it. Okay. Can you hear it? क्या आप वीडियो तस्वीर देख सकते हैं? हाँ, हम Yes? इसे देख सकते हैं। ठीक है। क्या आप इसे Zika सुन virus सकते is हैं spread by और avian नहीं? mosquitoes, which are found in nearly all the continents अभी and live नहीं। mostly during the day. ठीक है। Zika virus can be जिका transmitted वायरस मच्छरों sexually से between फैलता है, people and from mother to child during pregnancy. जो लगभग सभी Although cases of महाद्वीपों में Zika पाए virus जाते हैं disease और ज्यादातर have जिका declined वायरस के globally दिन पाए since जाते हैं, 2017, they are still occurring in गर्भावस्था low के doses दौरान in लोगों several और एक countries माह in the से Americas दूसरे and in बच्चे के other बीच regions. यौन संचारित हो सकता है। Today, हालांकि 89 2017 के बाद से countries वैश्विक स्तर पर territories have जिका current वायरस रोग के transmission by मामलों में Zika गिरावट आई virus है। वे transmitted अभी by भी कई avian देशों में mosquitoes. निम्न स्तर पर हो रहे हैं, अमेरिका में और Most अन्य infected क्षेत्रों में। आज people do not have प्रदेशों के metabolic 89 symptoms. देशों में They जिका can have वायरस के कारण rash, वर्तमान fever, में red and संक्रमण UTIs किसके and द्वारा mouth फैलता है? odors. एडीज मच्छर। ज्यादातर संक्रमित लोगों Some में infected लक्षण विकसित patients नहीं होते develop हैं, serious उन्हें neurological दाने जैसा ज्वर conditions हो like सकता है। Guillain-Barré ठीक है, और यह syndrome है। with progressed दूसरों weakness, के अलावा inability to breathe and requiring कुछ ventilation. संक्रमित मरीजों Some में women न्यूरोलॉजिकल infected during गंभीर pregnancy स्थितियां have विकसित हो difficulties जाती with है, their head जैसे and गुइलेन-बार neck, सिंड्रोम प्रकृति के साथ hypoxemia, कमजोरी, सांस also लेने में Zika असमर्थता और contagion वेंटिलेशन की syndrome आवश्यकता। and गर्भावस्था के दौरान post-pregnancy संक्रमित होने वाली dyspepsia. कुछ महिलाओं के सिर सामान्य से Currently, there is छोटे no बच्चे होते हैं, specific treatment or vaccine for यानी Zika virus माइक्रोसेफली, और infections सीवियर or कंजेनिटल disease. सिंड्रोम और इसके साथ Infected समस्याएं people समय with से mild पहले और symptoms गर्भपात। should get फिलहाल plenty of rest, stay hydrated, and treat symptoms with medications for जिका rashes and वायरस fever. संक्रमण या बीमारी का कोई This खास is इलाज या important वैक्सीन for नहीं है। patients experience numbness, हल्के लक्षणों वाले including संक्रमित muscle लोगों को weakness, or भरपूर आराम करना difficulty चाहिए। breathing, हाइड्रेटेड का should आकलन seek करें और चकत्ते immediately और बुखार की medical दवाओं से advice लक्षणों का इलाज here. करें। अगर लक्षण और खराब हो Patients जाते who हैं have या मरीज सुन्न struggled हो जाते through हैं, or live in मांसपेशियों में areas कमजोरी with बढ़ना या सांस लेने transmission में or दिक्कत होना, develop symptoms of उन्हें Zika तुरंत मेडिकल virus सलाह लेनी infection, चाहिए। they should seek देखभाल, medical attention for laboratory testing, information, counseling, and other अगर गर्भवती critical महिलाओं care को to जिका prevent ट्रांसमिशन Zika वाले virus क्षेत्रों में infection. यात्रा करनी पड़े या वहां रहना पड़े, या People जिका in वायरस areas where संक्रमण the के virus लक्षण is विकसित होना, circulating उन्हें प्रयोगशाला freely में are परीक्षण के free लिए to चिकित्सा avoid की the तलाश करनी चाहिए। mosquito जानकारी, bites जिका वायरस से during the बचाव के day लिए and in the परामर्श और evening. अन्य नैदानिक This is देखभाल, especially इन्फेक्शन, important for उन pregnant इलाकों women, के लोगों को women कार्रवाई under करनी चाहिए जहां north वायरस and फैल young रहा है, children. Helpful ताकि strategies दिन में और include शाम को wearing मच्छरों के light काटने colored से बचा जा clothing सके। that covers यह as much गर्भवती body महिलाओं के as लिए खास possible. तौर से जरूरी है। Using physical प्रजनन आयु की barriers महिलाएं such as और window छोटे बच्चे, screens, closed doors, मददगार and रणनीतियां, windows, and applying insecticide repellent to skin or विंडो wounds. स्क्रीन जैसे भौतिक अवरोधों Aedes का mosquito उपयोग breeding करना, जिसमें sites हल्के should रंग be के कपड़े पहनना भी eliminated शामिल by है, जो covering शरीर के पूरे garbage हिस्से or को जितना हो सके containers ढक ले। with दरवाजे clothing और and खिड़कियां with बंद करें water in flower pots, and cleaning up और trash त्वचा that या makes कपड़ों पर कीटनाशक transmitter से borne बचाने to वाली क्रीम mosquitoes लगाना। reproduction. पानी रखने वाले कंटेनरों को ढककर एड्स मच्छर पनपने वाले स्थलों को खत्म किया जाना चाहिए। फूलों के गमलों में जमा पानी को हटाना और कूड़ेदान को साफ करना जो जलाशय के रूप में काम कर सकता है। मच्छरों के प्रजनन के लिए जिका वायरस से पीड़ित लोग, खासकर गर्भवती महिलाएं और उनके यौन साथी, यौन संबंधों के जोखिम के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। संभावित प्रतिकूल गर्भावस्था और घातक परिणामों को रोकने के लिए संचरण, यौन रूप से सक्रिय लोगों को सलाह दी जानी चाहिए और उन्हें गर्भनिरोधक तरीकों की एक पूरी श्रृंखला की पेशकश की जानी चाहिए ताकि वे गर्भवती होने या न होने के बारे में जानकारी चुन सकें। जिका के साथ स्वास्थ्य संगठन सहायता करने वाले देशों थे। Support includes development of evidence-based
technical and वैश्विक clinical आर्बोवायरस guidance, इनिशिएटिव outbreak और अन्य response सहक्रियात्मक activities, रणनीतियों के तहत coordination of विभिन्न तरीकों से laboratory वायरस का confirmation, संक्रमण और collaborative बीमारी पर centers, नियंत्रण and सहायता में infrastructure साक्ष्य का readiness. विकास आधार शामिल है। We can all play a तकनीकी role और क्लिनिकल to मार्गदर्शन, reduce the impact आउटब्रेक of रिस्पांस Zika. गतिविधियां, Protect yourself, सहयोगी your केंद्रों के loved जरिए ones, and your प्रयोगशाला की पुष्टि community का by समन्वय taking और steps बेहतर to निगरानी prevent जिका के sick प्रभाव को lives, कम करने में healthcare हम सभी patients, भूमिका निभा सकते हैं। visit your healthcare अपनी provider for सुरक्षा करें। counseling and care if you think you have been मच्छरों के infected काटने with से Zika रोकने के लिए virus. कदम उठाकर आपके प्रियजन और आपका समुदाय यौन संचरण और परामर्श और So, देखभाल के thank लिए you very अपने स्वास्थ्य much. देखभाल प्रदाता से संपर्क करें। So now I will give the floor अगर to आपको Dr. लगता है Maria कि Van आप Kerkhove, जिका वायरस से who संक्रमित is हो the गए हैं। unit head of the emerging diseases खैर, and आपका बहुत बहुत zoonoses, धन्यवाद। who is going तो to अब talk हम फिश पर briefly डॉक्टर के about पास जा रहे Zika हैं। as part of the unit of मारिया emerging वैन diseases केरखोव, and इमर्जिंग zoonoses. डिसीज एंड जूनोसिस का Maria, यूनिट Dr. हेड Van कौन है? Kerkhove, over to you. Thank you, Diana, and thanks for your adaptation. with इमर्जिंग the यूनिट के videos हिस्से and के the तौर पर जिका के बारे में Zika संक्षेप में So बात I'll करने be वाला very कौन है? brief so we can रोग get और on to the जूनोसिस क्षेत्र webinar. डॉक्टर वान So केरखोव most of आपको you know सौंप that देता Zika है। has not been in the news since धन्यवाद डायना और उस 2017, वीडियो को स्वीकार when the करने के लिए public health धन्यवाद जो बहुत emergency बढ़िया था। international इसलिए मैं बहुत started संक्षिप्त linking जानकारी Zika दूंगा ताकि हम virus to वेबिनार की COVID शुरुआत कर ending. सकें। तो However, आप में से it is ज्यादातर लोग जानते circulating हैं in कि many जिका तब countries से and चर्चा में नहीं है। regions. As you've seen in the 2017 जब video, जिका को most of the माइक्रोसेफली से people जोड़ने वाली infections on अंतर्राष्ट्रीय ACE चिंता did का not have सार्वजनिक or स्वास्थ्य mild, which आपातकाल makes it खत्म हो गया very था। हालांकि challenging for यह कई health देशों officials और to क्षेत्रों में actually फैल detect रहा the है, जैसा virus, कि आपने वीडियो में which देखा है। poses challenges जिका के in ज्यादातर finding the right संक्रमण बिना tools लक्षण for के या हल्के professionals होते to हैं, either prevent infections जिसके or help कारण for स्वास्थ्य those who are प्रणालियों के लिए infected with असल में Zika. इसका पता लगाना बहुत On मुश्किल this हो जाता है। EpiWin seminar, we want to give वायरस you जो a संक्रमण को providing रोकने के लिए opportunity to सही तरह के update हस्तक्षेप you प्रदान करने में on चुनौतियां current पेश करता है, या epidemiology उन of लोगों की Zika देखभाल virus करना जो जिका से in the संक्रमित है। region इस where it ईपीआई has विन been सेमिनार के detected, दौरान and bring awareness to हम all आपको of इस you बारे में about अपडेट the करने का other अवसर देना areas चाहते where हैं। Zika is still circulating. Healthcare workers जिका should be वायरस की informed मौजूदा of महामारी the विज्ञान उन potential क्षेत्रों में है diagnosis जहां for इसका पता चला residents है, or those who have traveled और to जिका areas अभी भी where the किन virus क्षेत्रों में घूम रही है। virus इसके has बारे been में आप सभी transmitted को जागरूकता by the लाओ। Aedes mosquito vector. And remember उन that क्षेत्रों most की यात्रा at की है risk जहां वायरस है। and remember स्वास्थ्य those who देखभाल are most at कर्मचारियों को risk जिका for को निवासियों या उन complications लोगों में of Zika संभावित निदान के infection, रूप में मानना and those चाहिए are जो pregnant ये women and वायरस their कहाँ ट्रांसमिट partners. कर रहे हैं। Many 80 के people दशक के associate मच्छर Zika वाहक with द्वारा और measles, याद रखें कि but सबसे today we ज्यादा will खतरा see था, that it's not only और उन unique to लोगों को one याद region of रखें the जिन्हें जिका country, संक्रमण की but there जटिलताओं are का other सबसे areas ज्यादा where खतरा है Zika और is वे circulating गर्भवती and we want to महिलाएं pays और उनके attention to पार्टनर this. हैं। बहुत से लोग जिका को It's also ब्राजील से important जोड़ते not हैं, just to know लेकिन one आज आप more देखेंगे about कि यह Zika सिर्फ एक खास देश में ही but नहीं are है, we लेकिन doing ऐसे अन्य as the क्षेत्र भी World हैं Health जहां जिका Organization घूम and our रही है partners और हम to ऊपर prevent, उठना चाहते detect, हैं। and respond to Zika and other इस पर ध्यान arboviruses. देना न सिर्फ यह As जानना you भी saw जरूरी from है the कि video, हम we जिका are और working उसके on a सर्कुलेशन के global बारे में क्या arbovirus जानते हैं, initiative. लेकिन हम रोकने targeting के लिए Zika, अपने सहयोगियों के modeling साथ विश्व स्वास्थ्य chikungunya, संगठन के yellow तौर पर fever, क्या कर and रहे हैं। dengue वीडियो से to provide जैसे an ही आपने देखा integrated जिका और approach अन्य and in आर्बोवायरस का पता partnership लगाएं there और to उनका tackle जवाब दें। these arboviruses. चिकनगुनिया के साथ हम And एक वैश्विक specifically, आर्बोवायरस पहल पर काम कर activities रहे हैं जो include जिका को साथ में monitoring लक्षित virus कर रहा है। infection शीत ज्वर और and डेंगू Zika virus एकीकृत transmission दृष्टिकोण प्रदान करने के globally लिए so that we can anticipate इन any आर्बोवायरस से risks and निपटने के लिए prevent large भागीदारों को outbreaks साथ लाना happening और where खास that may तौर be पर इन possible. गतिविधियों में शामिल है। To reduce वायरस epidemic ट्रांसमिशन risk, की निगरानी करना, strengthening early जिका detection वायरस and वैश्विक स्तर transmission पर to फैल रहा improve है ताकि हम response to इसका Zika अनुमान लगा outbreaks, सकें। developing प्रकोप और बड़े guidance for प्रकोपों को होने से surveillance रोकना and जहां महामारी को monitoring कम करना probable संभव हो सकता है। Zika virus निगरानी complications, के लिए मार्गदर्शन विकसित enhancing करना, जिका environmental प्रकोप के and प्रति vector प्रतिक्रिया में सुधार surveillance, करने के लिए and ट्रांसमिशन का cross-sectoral शीघ्र पता vector लगाने को control, मजबूत करने के माध्यम से जोखिम, developing जिका risk वायरस का नैदानिक mitigation and प्रबंधन और strengthening फॉलो अप, जिका community वायरस की engagement and जटिलताएं पर्यावरण resilience और वेक्टर so that we निगरानी को can बढ़ा रही reduce है, as many infections as और क्रॉस possible. सेक्टोरल वेक्टर नियंत्रण को मजबूत Updating करना, the public health research agenda of Zika because we जोखिम don't know संचार विकसित everything करना about और this समुदाय के virus or जुड़ाव the और disease that लचीलापन it को मजबूत causes, करना ताकि and हम जितना संभव हो together उतने with other संक्रमणों को रोक सकते हैं। arboviruses to support the जिका के development सार्वजनिक of स्वास्थ्य अनुसंधान integrated एजेंडे को अपडेट countermeasures, करना, such क्योंकि as हमें इस वायरस और इसके कारण diagnostics होने वाली therapies बीमारी and के बारे में vaccines सब and कुछ नहीं other पता है, control और tools. नवोन्मेषी We are प्रति hoping उपायों to के work विकास with में our सहायता partners करने के and लिए provide a अन्य larger आर्बोवायरस के साथ, role in research, जैसे कि डायग्नोस्टिक्स, identifying priority areas to थेरेप्यूटिक्स और pursue टीके for और research, वेक्टर नियंत्रण such as उपकरण। understanding the risk हम of अपने पार्टनर के साथ microcephaly काम and the करने और spectrum लीडिंग of प्रदान करने की neutropils in उम्मीद this करते हैं।
हैं। जिका रिसर्च के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में शोध में भूमिका, जैसे कि माइक्रोसेफली के जोखिम और जन्मजात स्पेक्ट्रम को समझना, जिका सिंड्रोम, और इस सब के सफल होने के लिए हम दुनिया भर में कई भागीदारों के साथ काम करते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें यह करना जारी रखना होगा। तो वापस आपके पास वापस जाता है डायना, ताकि हम सेमिनार में EPI API के साथ आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मारिया। और ठीक है, चलिए हमारे आमंत्रित वक्ताओं के साथ शुरुआत करते हैं। अब मैं फ्लोर डॉक्टर को दे दूंगा। सुदत्त समरवीरा, Thank you. I will share my slides. दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में आर्बोवायरस पर हमारे क्षेत्रीय सलाहकार डॉक्टर सुदात, आपके ऊपर धन्यवाद। मैं अपनी स्लाइड शेयर करूंगा। Can you see my slides? Yes, but we are not seeing them in presentation mode. We can see all your क्या slides आप now. कर सकते हैं?
क्या आप मेरी स्लाइड्स Glenda, देख do you सकते हैं? want us to हाँ, share it for you? लेकिन हम उन्हें प्रेजेंटेशन मोड में नहीं देख रहे हैं। क्या आप आपका पूरा डेस्कटॉप देख सकते हैं? कृपया करके हमें बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि हम इसे आपके लिए शेयर करें। Can you see it now? Yes, we can see them. Over to you. Go ahead. Thank you. Okay, thank you. The Southeast Asia has हाँ, हम उन्हें 11 आपको देख countries. सकते हैं। आगे Out of बढ़ो। that, धन्यवाद, other than धन्यवाद। Bhutan, DPR, Korea, Nepal, and दक्षिण Timor पूर्व Leste. एशिया में है। All other उसमें countries से have, 11 देश भूटान, reported, डीपीआर, कोरिया के अलावा systems of, Zika नेपाल virus और infection तिमोर in those लेस्ते countries. अन्य सभी देशों ने इसकी सूचना दी है। In Bangladesh, the first case of उन Zika देशों virus में जिका infection, वायरस संक्रमण was, का अस्तित्व reported in 2016, बांग्लादेश में in a sample collected from a 67-year-old male who had जिका never been वायरस disease, संक्रमण का that पहला somebody मामला that, था 2016 में local रिपोर्ट की transmission गई। of, Zika. In एक India, 67 वर्षीय it is पुरुष से लिए reported गए in नमूने में as जो early as कभी विदेश नहीं गए 1952, थे। इसका by मतलब है कि the लोकल National Institute of ट्रांसमिशन Virology, Pune, भारत में जिका by examining samples, इसकी samples सूचना collected, नेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा and they reported 1954 की शुरुआत में दी गई थी। नमूनों की जांच करके वायरोलॉजी की खून के नमूने एकत्र किए गए और रिपोर्ट किए गए। इन नमूनों में सेरो पॉजिटिविटी का 16.8% है। लेकिन आपको व्याख्या करनी होगी। ये परिणाम बहुत सावधानी से होते हैं क्योंकि यह डेंगू वायरस के कारण होने वाली उच्च लागत वाली गतिविधि है और अमेरिका में अन्य फ्लेविवायरस 2016 में सेंटिनल सर्विलांस की स्थापना करें। 2017 में रिपोर्ट किए गए सबसे पहले मामले अहमदाबाद में हैं। गुजरात और चेन्नई और 2018 में इसके साथ बड़े प्रकोप की सूचना मिली थी। राजस्थान में 283 मामले, गुजरात और मध्य प्रदेश 2021 में फिर से महाराष्ट्र देश के अलग अलग हिस्सों में 22 और 23 मामले सामने आए। कर्नाटक और हाल ही में मुंबई, इंडोनेशिया में 1981 पहला मामला सेंट्रल जावा में दर्ज किया गया था। फिर 2013 से 2015 तक इंडोनेशिया से लौटने वाले यात्रियों में छिटपुट मामले सामने आए हैं और साथ ही 2014 में भी 14 प्रांतों में सेरो प्रेवलेंस सर्वेक्षण से पता चला है कि 1 से 4 साल के बीच 19.9 1% और 529.2% जिका वायरस संक्रमण का सेरो प्रेवलेंस 2016 में फिर से जिका वायरस एक 27 वर्षीय पुरुष निवासी को आइसोलेट कर दिया गया है। मालदीव के सेंट्रल सुमात्रा में प्रयोगशाला में जिका वायरस रोग के मामलों की पुष्टि की गई 2015 में रिपोर्ट की गई थी। फिनिश के एक 37 वर्षीय पुरुष में जो मालदीव में 6 महीने काम करने के बाद जल्द ही घर लौट आया। उसे वापस करने के बाद उन्हें फ्लू जैसे लक्षण विकसित हुए, दाने और दर्द और जिका वायरस के लिए पॉजिटिव यूरिन के नमूने में एक पीसीआर, लेकिन एक ही समय में सीरम में नहीं। डेंगू वायरस आईजीजी और मैं पॉजिटिव हूं लेकिन इसमें डेंगू नेगेटिव था। लेकिन जिका वायरस की तबाही यूरिन में पीसीआर ने जिका वायरस के मामले के रूप में इसकी पुष्टि की है। 2016 और 17 में फिर से इसके बाद परीक्षण किए गए 651 मामलों में से 3 मामले सकारात्मक थे। विश्लेषण के बाद मालदीव, म्यांमार में कोई मामला सामने नहीं आया है। बिना लक्षण वाले मरीजों के 162 नमूनों में से मरीजों और बिना लक्षण वाले लोगों के लोग 2004 से 2017 तक जिका वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। यहां तक कि डेंगू के लक्षणों वाले 4.9% मरीज और एसिम्प्टोमेटिक का 8.6%। श्रीलंका में परीक्षण 201719 में से डेंगू के संदिग्ध रोगियों से 595 नमूने एकत्र किए गए। 2/3 देखभाल अस्पतालों में दिखाया गया है। 22.9% नमूनों में जिका वायरस होने की पुष्टि हुई। इन्फेक्शन, यह शोध 2023 में प्रकाशित हुआ है। थाईलैंड में ऐसा माना जाता है
कि जिका वायरस संक्रमण स्थानिक है। For 21st जून में August, चरम पर होना this और year, गीले मौसम के साथ मेल 141 खाना, cases has been reported from या इस साल 22 अगस्त के provinces, 21 से with the 21 को highest देश number में of बारिश का reported मौसम, one single province, with 241 मामलों की 76 सूचना cases. मिली है। 20 से 22 प्रांत, This एक ही 2016 to प्रांत से 2022 सबसे data ज्यादा shows रिपोर्ट के that, साथ out of these 76 मामले 141 Zika virus infected pregnant women, 3 delivered babies have been 2016 से mildly and 5 2022 has तक के इस demonstrated डेटाबेस से पता children चलता with है। इन abnormalities 241 जिका also वायरस से Guillain-Barré संक्रमित syndrome, गर्भवती महिलाएं, 3 बच्चे हुए, the typical presentations of Zika virus 15 infection. से माइक्रोसेफली So you और can see इससे that there जन्मजात are different असामान्यताएं भी प्रदर्शित हुई हैं और presentations in countries. गिलेन-बार सिंड्रोम, जिका की असामान्य प्रस्तुतियों के साथ वायरस संक्रमण। तो आप देख सकते हैं कि अलग-अलग तरह के होते हैं। उन देशों में प्रस्तुतियां जिनका देशों के बीच निगरानी और नियंत्रण क्षमता सर्वेक्षण के बारे में सर्वेक्षण किया गया था, और 11 देशों में से रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया क्षेत्र के 10 देशों ने इस पर प्रतिक्रिया दी और यह पता लगाने की उपलब्ध क्षमता की यह ट्रांसमिट किया गया है अन्य बीमारियों के लिए। आप देख सकते हैं कि डेंगू वायरस का परीक्षण उचित है। इन 10 देशों में से लगभग सभी देशों में मजबूत। इसके बाद ज्यादातर देशों में चिकनगुनिया वायरस आता है। उनमें किसी तरह की डायग्नोस्टिक सुविधाएं हैं, लेकिन जब आपको जिका वायरस का सामना करना पड़ता है, आप देख सकते हैं कि ज्यादातर देश गरीब हैं। इस पहलू से तो इसका मतलब है कि ज्यादातर देशों में यह क्षमता नहीं है। फिलहाल परीक्षण करने के लिए है या कोई परीक्षण तंत्र नहीं चल रहा है। इन देशों में ऐसे सिर्फ छिटपुट मामले हैं, मुख्य रूप से शोध गतिविधियों के कारण रिपोर्ट किया गया है। हालांकि सीरोलॉजिकल अध्ययनों से पता चलता है कि जिका वायरस संक्रमण की मौजूदगी 1950 के दशक से ही दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र रिपोर्ट किए गए मामले छिटपुट सीरोलॉजिकल हैं। अधिकांश समय संपत्ति का इस्तेमाल किया जाता है। जिका वायरस संक्रमण की पहचान हो सकता है कि दूसरे सर्कुलेटिंग फ्लेविवायरस के साथ क्रॉस रिएक्टिव हो, जैसे कि थोड़ा सा डेंगू वायरस और जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस। इसलिए व्याख्या में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जिका वायरस संक्रमण की अनुपलब्धता की वजह से कमजोर रिपोर्टिंग या स्थानीय जगह पर पता लगाना हो सकता है। सर्विलांस सिस्टम और साथ ही इसके लिए परीक्षण नहीं किया जा रहा है। फिर से जिका वायरस संक्रमण के शामिल होने की संभावना जितनी कम होगी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, क्योंकि यह इस समय एक दुर्लभ बीमारी है और इसके लक्षण नहीं है। जिका वायरस की हल्की या असामान्य प्रस्तुति अक्सर होती है, तो इस वजह से इस संदर्भ में केस छूट गए हो सकते हैं। जिका वायरस की महामारी विज्ञान और उस क्षेत्र में बीमारी के बोझ के बारे में ठीक से समझा नहीं गया है। समझने के लिए और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सही है या क्षेत्र में स्पष्ट बोझ, और यह लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालता है। इस क्षेत्र में तो मैं मानना चाहूंगा कि डॉ. आया याजिमा, डॉ. हन्ना ब्रिंडर, डॉक्टर युका जुलाई और डॉ. पी के अमरनाथ बाबू मेरी प्रस्तुति की तैयारी में मदद करने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉ. सुदात और साउथ ईस्ट एशियन की ओर से इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिका की महामारी विज्ञान पर क्षेत्र, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि जिका अभी भी घूम रही है, और अपने क्षेत्र की मुख्य चुनौतियों और सीमाओं के बारे में बताने के लिए भी धन्यवाद। और मुझे पक्का पता है कि सभी क्षेत्रों में ऐसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं डॉक्टर जूडी वोंग को फ्लोर दे दूंगा, माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजी के निदेशक, सिंगापुर में राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी की। जिका के केस कीट विज्ञान और अपशिष्ट जल निगरानी के बारे में कौन बात करने जा रहा है? एक बहुविषयक दृष्टिकोण। डॉ. वोंग, आपके ऊपर धन्यवाद। डायना और सभी लोग मेरी स्क्रीन देखते हैं। हाँ, हम आपकी स्क्रीन देख सकते हैं। आगे बढ़ो। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और सबको गुड इवनिंग, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। WHO जिका की स्थिति के बारे में अपडेट शेयर करने के लिए हमें आमंत्रित करने के लिए सिंगापुर में, और कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी केस कीट विज्ञान और अपशिष्ट जल के लिए एक बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाया है। जिका के लिए निगरानी। जब हाल ही में हमारे कई केस आए थे सिंगापुर में,
हमने सबसे पहले 2016 से 2017 तक केस और प्रकोप की सूचना दी थी। जब लगभग 500 मामले सामने आए थे, तब से हमारे पास सिर्फ एक बहुत छोटा समूह था। 2019 में और पिछले कुछ वर्षों में कुछ छिटपुट मामलों में। हालांकि इस साल 2023 में हमारे पास 22 मामले दर्ज किए गए थे और पूर्वोत्तर में 15 मामलों के एक समूह के साथ। इसलिए क्षेत्र की स्थिति पर नजर रखने के लिए हमने बेहतर केस और जैविक और अपशिष्ट जल निगरानी की। मामलों के लिए स्वास्थ्य देखभाल करने वालों और समुदाय को सतर्क कर दिया गया है कि वे उनकी देखभाल करें। लक्षण और एहतियाती उपाय करना। हमने यह समझने के लिए कि समुदाय में मामले थे या नहीं, केस सर्विलांस को अपशिष्ट जल निगरानी के साथ जोड़ दिया। हमने अनुमान लगाया था कि हम गंदे पानी में जिका के निशान का पता लगा पाएंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि वायरस यूरिन में शेयर होता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन का जोखिम। हमने समझने के लिए आसपास फंसे एडीज मच्छरों की भी जांच की। इसके बाद नतीजों ने जोखिम संचार, वेक्टर नियंत्रण संचालन और आगे की निगरानी के बारे में जानकारी दी। यहाँ पर है। यह नक्शा उन मामलों के स्थानिक वितरण और क्षेत्रफल को दर्शाता है जहां सकारात्मक मामले रिपोर्ट किए गए थे। नारंगी रंग में छायांकित, लाल और हरे रंग के बिंदु बताते हैं कि मच्छरों की स्थिति सकारात्मक और नकारात्मक है। क्रमश ट्रैक किया गया। बैंगनी रंग से घिरी ठोस रेखाएं, बढ़ते संकेंद्रित क्षेत्रों का हरा और नीला क्षेत्र। सामूहिक रूप से हमने अपशिष्ट जल का परीक्षण करने के लिए अपशिष्ट जल के नमूने कहाँ तैनात किए हैं। क्लस्टर क्षेत्र में हमारे नतीजों से पता चला कि जब सकारात्मक मामले चरम पर थे, जैसा कि ब्लू बार चार्ट में बताया गया है, हमने क्लस्टर में अपशिष्ट जल के सकारात्मक संकेतों का भी पता लगाया, जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ में नीली ठोस रेखा में दर्शाया गया है। हमने इस दौरान सकारात्मक मच्छरों का भी पता लगाया। इसके अलावा मच्छरों के नमूनों के लिए जब भी संभव हो हम उनका पता लगा सकते थे और जिका के लिए उनका परीक्षण कर सकते थे। और हमने पाया कि जिका का पता लगाना दोनों सिर में थे, और धड़ और साथ ही वयस्क महिला। तो इसका मतलब यह है कि वेक्टर जिका का प्रसार करने में सक्षम है और हम एडीज एजिप्टी और अल्बोपिक्टस दोनों में सकारात्मक पहचान मिली। शुक्र है। मई में पता चलने के बाद संकेतों में बाद में कमी और संकेतों में कमी। जून में पता चलता है कि नियंत्रण के उपाय काम कर रहे थे। इसलिए हम भी इसी तरह देश भर के अन्य इलाकों से अपशिष्ट जल का नमूना लेते हैं और शुक्र है कि जिका का पता नहीं चला। यह भी इसी तरह देखा गया जब हमने उन क्षेत्रों से एकत्र किए गए मच्छरों के नमूनों का परीक्षण किया। छिटपुट मामले सामने आए, इसलिए पूरे द्वीप पर निगरानी रखना असल में इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने इसका लाभ उठाया। अपशिष्ट जल की निगरानी के लिए मौजूदा निगरानी प्रणालियां। हमने मच्छरों के लिए अपने मौजूदा कोविड-19 सर्विलांस नेटवर्क पर काम किया है। निगरानी, हम एडीज एजिप्टी पर नजर रखने के लिए ट्रैक मॉनिटरिंग नेटवर्क पर काम करते रहे। सकारात्मक मामलों और मच्छरों के फाइलोजेनेटिक विश्लेषणों के संदर्भ में इसकी बहुतायत है। हमने पाया कि 2023 में जिका स्ट्रेन आनुवंशिक रूप से सिंगापुर में बताए गए पिछले स्ट्रेन से अलग है, और यह ब्लू फोन्स में वंशावली से पता चलता है, और मौजूदा स्ट्रेन आनुवंशिक रूप से सबसे करीब था। फिलीपींस में इससे पहले 2012 और 2016 में रिपोर्ट किए गए वायरस के बारे में अंतर और वंशावली हमारी इस समझ का और समर्थन करती है कि सिंगापुर में जिका का प्रसारण जारी नहीं है, भले ही हम समय समय पर लोकल ट्रांसमिशन का अनुभव करते हैं। इसी तरह के नोट पर 2016 में बड़े प्रकोप के बाद भी सीरो प्रेवलेंस परख की गई, दिखाया कि जिका सेरोपॉजिटिव लोगों में से सिर्फ 3.3% लोगों को ही है, और इनमें से सिर्फ 34% में ही न्यूट्रलाइज करने वाले एंटीबॉडीज की पुष्टि हुई। तो संक्षेप में कहें तो हमारे अध्ययन से पता चलता है कि सिंगापुर में जिका का लगातार प्रसारण नहीं हुआ था, हालांकि जनसंख्या प्रतिरोधक क्षमता कम होने और सक्षम वैक्टरों की उपस्थिति के कारण इससे जोखिम होता है। इसलिए इसके लिए केस वेक्टर की व्यापक निगरानी आवश्यक है। स्थिति पर नजर रखने के लिए अपशिष्ट जल की निगरानी, और ऐसा करके मौजूदा नेटवर्क पर टैप करके हम कुछ ही दिनों में क्लस्टर में तेजी से जूम इन करने और अपने निगरानी को चालू करने में सक्षम हो गए। प्रयास, खास तौर पर हमने एक नया तरीका भी बताया है। दिलचस्पी न होने पर अपशिष्ट जल की निगरानी के लिए जिका के प्रसार को समझने के लिए घुसपैठ की निगरानी।
और यह जिका के लिए खास तौर से जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि संक्रमण आम तौर पर होते हैं, लेकिन किसी कमजोर समूह में गंभीर बीमारी हो सकती है। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्रस्तुति जोड़ता हूं और मैं मार्गदर्शन के लिए टीचिंग में एसोसिएट प्रोफेसर को धन्यवाद देना चाहता हूं, और वे हमारी निदेशक है और साथ ही हमारी एजेंसी में सहकर्मी भी हैं, जिनमें विल्सन चैन भी शामिल है, बीटा मार्टिन और उनकी मदद के लिए चुइंग। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वोंग। सिंगापुर की केस स्टडी और बहुविषयक कैसे होता है प्रस्तुत करने के लिए दृष्टिकोण अलग अलग देशों में जिका वायरस के समूहों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। तो अब मैं दो सैंटोस को फ्लोर दे दूं। वे निगरानी और नियंत्रण की सलाहकार है। पैन अमेरिकन में उपेक्षित ट्रॉपिकल एंड वेक्टर बोर्न डिजीज यूनिट में आर्बोवायरस रोग स्वास्थ्य संगठन। आपके बारे में There we go. Thank you so much for the introduction and thank you so much for the invitation. It's a pleasure to be here. आपका बहुत बहुत धन्यवाद रियो। परिचय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आमंत्रण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अद्भुत चीज के साथ यहाँ आना खुशी की बात है। स्पीकर पैनलिस्ट, मैं आज जिका के बारे में कुछ बात करूंगा। जिका वायरस के साथ अमेरिका का अनुभव, जो पिछले वक्ताओं द्वारा पहले बताए गए शब्दों की तुलना में थोड़ा ज्यादा हाल का है। इस क्षेत्र में जिका का पहली बार पता 2014 में मिला था, प्रशांत द्वीप, ईस्टर द्वीप में, जो चिली से संबंधित है। और यह एक महामारी के साथ थी जो फ्रेंच पोलिनेशिया में हो रही थी और उस समय के अन्य प्रशांत द्वीप समूह। उसके बाद 2015 की शुरुआत में दाने जैसे बीमारी के समूह बनने लगे थे। दक्षिण पूर्वी राज्य में पता चला, माफ करना, ब्राजील के पूर्वोत्तर राज्य। फरवरी और अप्रैल में 7,000 मामलों का पता चला था, लेकिन यह 29 अप्रैल तक नहीं था। 2015 में लैब में पहली पुष्टि हुई। ये मामले डेंगू के तौर पर आ रहे थे जैसे कि, लेकिन डेंगू के लिए नकारात्मक है। और ईस्टर आइलैंड में हमें बताया गया है कि शुरू में उन्हें लगा कि यह किसी तरह की एलर्जी की महामारी है क्योंकि यह थी खुजली वाले दाने। फिर भी ऐसे बहुत कम मामले पेश किए गए हैं। बुखार, इसलिए यह पता लगाने में थोड़ा समय लगा कि असल में क्या है। एटियोलॉजिक एजेंट था, लेकिन 2015 की शुरुआत में यह साफ था कि यह जिका वायरस था और बस कुछ ही पाहो द्वारा जिका वायरस संक्रमण पर पहला ईपीआई अलर्ट जारी करने के कुछ दिनों बाद जिका केस प्रबंधन की निगरानी के लिए सुझाव देने वाले देशों को मार्गदर्शन प्रदान करना और रोकथाम और नियंत्रण कार्रवाइयां। और आपको यह पाहो वेबसाइट में मिल जाएगा और मैंने इसे शामिल कर लिया है। लिंक यहाँ दिया गया है, लेकिन मुझे बाद की बातों को भी शेयर करके खुशी हो रही है। इसके कुछ ही महीनों बाद, शुरुआती पता लगाने के कुछ ही महीनों बाद, खास तौर से देश जिका वायरस संक्रमण और गुइलेन बार सिंड्रोम के बीच संबंध की सूचना दी। उन्हें कुछ ही समय में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के 26 मामलों का पता चल गया था, वह भी बाहिया राज्य में जिका वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। और फिर उसके कुछ महीने बाद हमने माइक्रोसेफली के समूह देखे, खासकर ब्राजील में रिपोर्ट किया गया, और जिका इन्फेक्शन के साथ जुड़े। तो तुलना के बिंदु के रूप में 2010 और 2014 के बीच के 5 वर्षों में ब्राजील ने माइक्रोसेफली के 163 मामलों का पता लगाया था। सच में, जबकि जिका ट्रांसमिशन के इस दौर के दौरान माइक्रोसेफली के 3,530 मामले दर्ज किए गए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 फरवरी 2016 तक न्यूरोलॉजिकल विकार और नवजात में होने वाली विकृतियों दोनों के कारण यह घोषणा हुई। सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। तो यहाँ मेरे पास प्रसारित होने वाले 3 प्रमुख आर्बोवायरस का एक तरह से समेकन है अमेरिका के क्षेत्र में, और वे साल दर साल यहाँ होते हैं। बस इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि वह क्षेत्र क्या अमेरिका के पास इसके लिए सभी जरूरी कारक हैं। दुख की बात है कि आर्बोवायरस जनित का अच्छा प्रसारण सबसे निचले बार में आर्बोवायरस। आप देख रहे हैं कि यह डेंगू के मामले हैं। 2023 अब तक की बात है। आपको पता है, इन सालों में डेंगू के अब तक के सबसे ज्यादा मामलों की संख्या एक साल में भी नहीं हुई है। लेकिन इसके शुरुआती परिचय के बाद
आप जिका को 2014 में मुश्किल से देख सकते हैं, क्योंकि जिका का प्रतिनिधित्व सबसे गहरे गहरे नीले रंग में किया गया है, क्योंकि ईस्टर आइलैंड में सिर्फ कुछ ही मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन उसके बाद 2015 में ब्राजील में पता चला। आपको वहाँ एक पतली रेखा दिख रही है। 2016 में आपको एक विस्तृत रेखा दिखाई देगी और हम बाद में उसे थोड़ा और विस्तार से देख पाएंगे। लेकिन मैं आपको बस यह दिखाना चाहता था कि यह कितनी जटिल बात है कि ये 3 आर्बोवायरस अंदर फैल रहे हैं। कंसर्ट और खासकर जिका और डेंगू के मामले में दोनों ही फ्लेविवायरस निकट से संबंधित हैं। यह डायग्नोस्टिक से जुड़ी कुछ चुनौतियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी बात जो मैं यहाँ उजागर करना चाहता था वह यह है कि जिका के 2 साल बाद देखो डेंगू बुखार का क्या हुआ 2017 और 2018, जिसका इनके इस घनिष्ठ संबंध से कुछ लेना देना हो सकता है, फ्लाविविरस। लेकिन हमें इसमें लगभग 80% की कमी आई। डेंगू बुखार के लिए रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या, जो जाहिर तौर पर तब आया और वापस बाउंस हो गया बहुत जल्दी। इस साल तक 2019 सबसे ज्यादा डेंगू के मामलों वाला साल रहा है, सूचना दी तो। लेकिन इस संदर्भ में 2015 से इस वर्ष तक विषाणुजनित बीमारियां, जिका केस वायरस रोग रिपोर्ट किए गए मामलों में से 6% से थोड़ा कम का प्रतिनिधित्व करता है। तो अक्टूबर 2015 तक महाद्वीप में जाहिर तौर पर ईस्टर आइलैंड को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल चिली ने किसी भी मामले की सूचना नहीं दी थी और अभी भी लोकल ट्रांसमिशन के किसी भी मामले की सूचना नहीं दी है जिका वायरस के बारे में। लेकिन हमारे पास सिर्फ ब्राजील था और फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 12 अन्य देशों ने लोकल ट्रांसमिशन और फिर बाद के 3 महीनों की सूचना दी। 20 देश, 7 देश और अब तक 48 देशों और क्षेत्रों में लोकल ट्रांसमिशन की सूचना दी। अमेरिका क्षेत्र के 52 देशों और क्षेत्रों में से यहाँ आपको केस दिखाई दे रहे हैं जिन देशों के पास यह रिपोर्ट है। केस का सबसे ज्यादा बोझ इस क्षेत्र में रिपोर्ट किए गए 89% मामले इन्हीं में केंद्रित है। 10 देश, हालांकि ब्राजील में जिका के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। यह संचयी घटनाओं में चौथे स्थान पर है, प्रति 10,000 जनसंख्या पर 57 मामले। और यहाँ आपको सप्ताह के हिसाब से ज्यादा जानकारी मिलेगी। जिका वायरस संक्रमण की हफ्ते की केस रिपोर्ट, और आप देख रहे हैं कि ज्यादातर ट्रांसमिशन 2015 के आखिर में हुआ था, 2016 के पहले सेमेस्टर में, और उसके बाद कमी असल में चिंताजनक है, क्योंकि ठीक है यह कई लोगों के रूप में ट्रांसमिशन में कमी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। आपको पता है जिका एक ऐसी बीमारी है जिसका सर्वेक्षण करना मुश्किल है क्योंकि यह बहुत ही गैर खास है। संकेत और लक्षणों और मामलों का एक अच्छा हिस्सा दिखाता है, कोई नैदानिक अभिव्यक्तियां नहीं, और इसलिए पैसिव सर्विलांस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। कैप्चर और दूसरी चुनौती यह थी कि आखिर में अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के अंत की घोषणा के बारे में हमें सूचना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गिरावट दिखी। इसलिए तो जबकि यह कमी बहुत अच्छी तरह से इनकी संख्या में कमी भी हो सकती है उन मामलों के बारे में जिनका पता चला था। इसमें आर्टिफैक्ट की कुछ चीजें भी हैं, रिपोर्ट करने की शर्तें जो इसका प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, लेकिन उस समय से इस क्षेत्र में हमारा प्रसार चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन 2016 में जो स्तर देखा गया था उससे कहीं ज्यादा निचला स्तर है। अब तक हमारे पास लगभग 10 लाख केस आए हैं, पुष्टि की, उनमें से सिर्फ 27% मामले लैब के हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से लैब में होने वाले मामलों का अनुपात 8 से 35% के बीच है, 8 से 9% के बीच रहा है, जिसमें हस्तक्षेप के लिए बहुत सारे अवसर हैं और सुधार, जिसके बारे में हम प्रश्नोत्तर के दौरान चर्चा कर सकते हैं। और 2016 में सबसे ज्यादा घटनाएं 67.5% हुई प्रति 100,000। मैं यहाँ बहुत ज्यादा समय नहीं बिताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे आपके लिए यहाँ शामिल करना चाहता था। एक संदर्भ, यह केस की परिभाषा है जिसे हमने अपडेट किया है और हम 2022 से व्यवस्थित समीक्षा के आधार पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इस क्षेत्र में प्रकाशित सभी प्रकाशनों के आधार पर साहित्य का संचालन किया फ्रेंच पोलिनेशिया महामारी के बाद से, और मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप इसे बाद में देखें। स्लाइड्स में और वेबसाइट दोनों में। तो निष्कर्ष निकालने के लिए गणना करें और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में इस क्षेत्र के सभी देशों और क्षेत्रों ने स्थानीय स्तर पर प्रसारण की सूचना दी है।
2015 और 16 में हमारा ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा रहा है और इसके बावजूद 2016 में कमी। हमें असल में इस जानकारी को यहाँ साझा करते रहना होगा, उस तरह के समान स्तर जो वहाँ थे। और मुझे लगता है कि यह एक खास चिंता का विषय है, क्योंकि हर साल अगर यह लोड ट्रांसमिशन असल में सही है जैसा कि बताया गया है, फिर हम हर साल अतिसंवेदनशील चीजें जमा कर रहे हैं, तो हमें रुकना ही पड़ेगा। खासकर यह पक्का करने के लिए सतर्कता बरतते हैं कि ऐसा न हो। निकट क्षितिज में एक नई महामारी और दूसरी बात जिस पर मैं विचार करना चाहता था वह यह है कि हमारे लिए लिंक करना कितना जरूरी है न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम के साथ एक्यूट जिका संक्रमण की निगरानी। और वे निगरानी सिस्टम 2 स्ट्रीम है जो जरूरी नहीं कि हर जगह अच्छी तरह से संचार कर रही हो। तो इस क्षेत्र में भी हमारे सामने यह एक चुनौती रही है, और वह मुद्दा जो मैंने संक्षेप में उठाया था कि वह कितना महत्वपूर्ण है। जिका का समय पर पता लगाने के लिए पर्याप्त लैब डायग्नोसिस होना चाहिए, एक तरह से जो नियंत्रण क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। और मेरे पास बस इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इस बेहतरीन प्रस्तुति और महामारी विज्ञान की स्थिति पर अपडेट के लिए अमेरिका में जिका की तो बिना किसी देरी के, इसलिए हमारे पास आपके सभी सवालों को हल करने के लिए पर्याप्त समय हो सकता है। प्रश्नोत्तर में अपने सवाल डालते रहें और हम उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे और प्रस्तुतियों के आखिर में उनके बारे में चर्चा करें। मैं अब फ्लोर डॉक्टर को दे दूंगा। रिकार्डो गिमेनेज, एपिडेमियोलॉजिस्ट और ट्रॉपिकल के प्रोफेसर कौन है? मेडिसिन फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ पेर्नाम्बुको, ब्राजील। और वे WHO की ओर से भी बोलेंगे। मरीजों का व्यक्तिगत डेटा विश्लेषण, जिका सहकर्मियों का डेटा मेटा विश्लेषण जो जनता के दौरान बनाए गए थे। स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उनके नैदानिक लक्षणों को बेहतर ढंग से समझने और सभी शिशुओं के वापस आने के बारे में जानने के लिए। फिर माइक्रोसेफली और कंजेनिटल जिका सिंड्रोम के साथ। तो चलिए मैं डॉक्टर रिकार्डो गिमेनेज को फिश दे देता हूँ। मंजिल आपकी है, ठीक है। सबसे पहले इस पैनल में हिस्सा लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आपको इनके द्वारा विकसित गतिविधियों के बारे में अपडेट करता रहूंगा। WHO, जिका कंसोर्टियम और जिका ब्राजील के द्वारा कोहोर्ट कंसोर्टियम मुख्य रूप से सहभागियों के व्यक्तिगत डेटा पर मेटा विश्लेषण जिसे इन दोनों कंसोर्टियम में से हर एक द्वारा विकसित किया जा रहा है, इसके बाद होने की संभावना है। चलिए सबसे पहले WHO से शुरू करते हैं। कंसोर्टिया आईपीडीमा विश्लेषण का उद्देश्य सबसे पहले निरपेक्षता का अनुमान लगाना है और जिका से जुड़े इन सभी प्रतिकूल परिणामों के सापेक्ष जोखिम, गर्भावस्था के दौरान वायरस का संक्रमण। दूसरा, जिका एसोसिएशन के संशोधित वेक्टर की पहचान करने के लिए गर्भावस्था के दौरान जिका वायरस संक्रमण के कुल प्रभाव को समझने के लिए तीसरे स्थान पर 3 अक्षों में, मतलब जिका वायरस का सीधा असर, जिका वायरस का अप्रत्यक्ष प्रभाव और जिका वायरस के परस्पर क्रिया का असर और बदलाव करने वाले कारक, और पहचानने के लिए जोखिम पूर्वानुमान टूल विकसित करने और उसे मान्य करने के लिए महिलाओं को इसके विपरीत बच्चे पैदा करने का खतरा अधिक होता है। नतीजे, गर्भावस्था के दौरान जिका वायरस के संपर्क में आने के बाद अगला प्लीज तो व्यक्तिगत सहभागियों का डेटा मेटा विश्लेषण जिसे विकसित किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया यह सबसे व्यापक कदम है। यह इकट्ठा किया गया है 64 डेटा है 22 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए, और यह तीसरी 30,000 गर्भवती महिलाओं के व्यक्तिगत को दर्शाता है। कुल मिलाकर जिका वायरस पॉजिटिव किस्से लगभग 11,000 है। 18,000 बच्चे, 18,000 बच्चों का डेटा गिला है। WHO के संबंध में अब हम कहा है IPDMA मेटा विश्लेषण
तो सबसे पहले हमने एक प्रोटोकॉल लिखकर शुरुआत की जो 19 और उसमें किया गया था 2019। फिर हम खुद को इस तरह व्यवस्थित करते हैं समूह और हम ब्यूटी एंड मास्टर कोड बुक शुरू करते हैं सबसे पहले 200 वेरिएबल के साथ और फिर इसका विस्तार किया गया 900 वेरिएबल जिनमें से 700 को जरूरी माना जाता है हम इसे नीचे डेटा हार्मोनाइजेशन की ओर ले जाते हैं डेटा आयात और डेटा विश्लेषण और यह 3 चरणों में किया गया था पहले चरणों में हम पायलट डेटा सेट का इस्तेमाल करते हैं फिर पायलट डेटा सेट करता है और फिर हम विस्तार से लगभग 20 और डेटा सेट जोड़ते हैं और हम फिर से इन सभी चरणों से गुजर चुके हैं हमारे पास अब तक कौन कौन से उत्पाद हैं अब तक हमने प्रोटोकॉल प्रकाशित किया है मेटाडेटा पर हमारा पेपर उसके जरिए है प्रकाशन के लिए स्वीकार किए गए और हम लिख रहे हैं सामाजिक विज्ञान के 3 पेपर्स के बारे में उन 33 डेटा सेटों के विश्लेषण की पांडुलिपि हमने डेटा का विश्लेषण और उस पर चर्चा की है और उसने वह कदम उठाया जो था उसमें हमें जोड़ना होगा 30 और लगभग 30 डेटा सेट कर रहे हैं और वह इनके साथ सक्षम हो जाएगा वह जानकारी जो दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जोड़ी जाएगी 3 और 4 अगली स्लाइड चलिए अब जिका ब्राजीलियाई समूह की ओर बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन तो आईपीडीमा विश्लेषण का उद्देश्य डीबीसी कंसोर्टियम की डब्ल्यूएचओ की चिंता के बारे में यह अनुमान लगाना है आरटीपीसीआर द्वारा पुष्टि किए गए जिका वायरस से पीड़ित महिलाओं की संतानों में प्रतिकूल परिणामों का जोखिम गर्भावस्था के दौरान संक्रमण और इन अध्ययनों के बीच विषमता का पता लगाने के लिए अगली स्लाइड प्लीज सीबीसी कंसोर्टियम रखेगा 13 कोहोर्ट अध्ययन और उनके बारे में ब्राजील के सभी क्षेत्रों की 15,000 महिलाएं जिनमें जिका वायरस है महामारी थी अगली स्लाइड प्लीज हमारे पास अभी तक जो नतीजे आए हैं वे ये हैं कि हमारे पास अब तक हमारे पास जो परिणाम है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी है माइक्रोसेफली का सबसे बड़ा जोखिम यह है लगभग 20 से 2.5%। अगर जन्म के समय विचार किया जाए पहला मूल्यांकन और अगर हम किसी भी समय विचार करें तो लगभग 4%। फॉलो अप करने से दिमागी छवि का जोखिम ज्यादा था यह लगभग प्रतिशत था मुख्य रूप से कैल्सिफिकेशन और वेंट्रिकल मुख्य रूप से अगली स्लाइड प्लीज न्यूरोलॉजिक परिणामों का जोखिम है उच्चतर लगभग 20% और ऑपथेल्मोलॉजिकल जोखिम और खोपड़ी के नतीजे लगभग 5% थे अगर हम समग्र जोखिम का मतलब समग्र जोखिम पर विचार करें इनमें से कम एक असामान्यता पेश करने का जोखिम माइक्रोसेफली क्या आप तंत्रिका संबंधी या नेत्र संबंधी सामान्य स्थिति का उल्लेख कर सकते हैं यह लगभग 30% है और यह एक बिंदु है जिस पर मैं आपका ध्यान ढकना चाहता हूं क्या हमें माइक्रोसेफली और दोनों के बीच संबंध मिला जन्म के बाद ब्रेन इमेजिंग की औपचारिकताएं हमारे पास संक्रमण का समय हो गया है गर्भावस्था की पहली तिमाही तक अधिक होती है और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि माइक्रोसेफली का कोई संबंध नहीं पाया गया हमारे पास शिक्षा का एक स्तर है जो कि अनुमानित सामाजिक आर्थिक स्थिति है इस क्षेत्र के साथ रेस से कोई संबंध नहीं है ब्राजील का जिसमें यह अध्ययन किया गया था अगली स्लाइड प्लीज
तो यह अध्ययन क्या है और इसमें क्या है, पहले प्रकाशित हुआ था। यह बुलेटिन है क्योंकि इससे पता चलता है कि जीवन के लगभग 1/3 बच्चे जन्म से पहले जिका के संपर्क में आने से गर्भावस्था के दौरान वायरस का संक्रमण कम से कम एक असामान्यता के साथ संगत होगा। जन्मजात संक्रमण, इससे यह भी पता चलता है कि जन्म का मूल्यांकन इसे कम करके आंका जा सकता है। माइक्रोसेफली या प्रसवोत्तर के रूप में जिका वायरस से संबंधित माइक्रोसेफली का जोखिम, और यह दर्शाता है कि जिका वायरस से संबंधित माइक्रोसेफली का खतरा क्षेत्र के संबंध में अपेक्षाकृत समरूप है। शिक्षा के स्तर के संबंध में और उसमें आगे विचार किए गए समूहों की दरों के संबंध में इसके निहितार्थ क्या है? क्या इसका मुख्य निहितार्थ यह है? यह इनकी सहायता के लिए एक बहुविषयक स्वास्थ्य टीम की जरूरत को दर्शाता है। इन संकेतों और लक्षणों की जटिलता और विविधता के कारण बच्चे जिन्हें देखा गया है, यह दिखाता है कि लंबी अवधि के परिणामों के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है। इन बच्चों की तरह गर्भावस्था में जिका वायरस का संक्रमण अधिक समय में स्कूल की उम्र तक पहुंचने से आमतौर पर ऐसा होता है कि वे न्यूरोडेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए ज्यादा सहायता का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करने से पता चलता है कि उन्हें इसकी जरूरत है। जिका वायरस डायग्नोस्टिक टूल विकसित करना जारी रखें। यह ज्यादा हो सकता है और एक्टिवेट किया जा सकता है कि सर्कुलेटिंग का जल्दी पता लगाने से पहले उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि महामारी को टालने के लिए समुदायों में जिका वायरस है। यह याद आ रहा है कि वे पहले थे सूचित किया। हमारे अंदर अतिसंवेदनशील होने की संभावना बढ़ रही है। अतिसंवेदनशील व्यक्ति, अभी भी कोई वैक्सीन नहीं है और यह एक सर्वेक्षण है जिका के संबंध में मुश्किल है। अगला, यह अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करो। इस वेबिनार में हमारे साथ शामिल होने के लिए रिकार्डो को धन्यवाद। मेटा विश्लेषण के परिणामस्वरूप सभी मौजूदा जानकारी में हमें अपडेट किया जा रहा है अलग अलग साथियों में से। तो ठीक है, हमारे पास इनमें से कुछ के लिए और उनके जवाब देने के लिए सही समय है जो सवाल पोस्ट किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मुझे यहाँ एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहिए कि क्या जिका मेक्सिको की मौजूदा स्थिति, और अगर यह अभी भी चिंता का विषय है, क्या आप कर सकते हैं? यह सवाल आपके लिए है, आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मतलब है, हमारे पास जिका के लिए अलार्म की कोई वजह नहीं थी। यह साल हैरतअंगेज रूप से कम ट्रांसमिशन वाला रहा है। मेरा मतलब है, पिछले साल की तुलना में बहुत कम। भले ही साथ साथ हमें डेंगू दोनों की महामारी हो रही है और चिकनगुनिया ट्रांसमिशन का दक्षिणी गोलार्ध का मौसम अभी समाप्त हुआ है। यह साल का पहला सेमेस्टर है और हमारे पास असाधारण रूप से था डेंगू बुखार दोनों का स्तर और साल का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर। मामले की शर्तें, लेकिन साथ ही चिकनगुनिया के मामलों का एक बहुत ही उच्च स्तर है जो काफी महत्वपूर्ण है। पैराग्वे में महामारी और फिर कुछ हद तक अर्जेंटीना में, बोलीविया और, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है इस संदर्भ में हमारे पास जिका का ट्रांसमिशन बहुत कम रहा है। इससे ट्रांसमिट होता रहता है, लेकिन आपको पता है कई देश कॉम्प्लेक्स चला रहे हैं जहां एक एक करके दौड़े वे यह पता लगाने में सक्षम है कि जिका के लिए एक नमूना सकारात्मक है या नहीं। चिकनगुनिया, डेंगू, तो जब हमें पता चलता है पैसिव सर्विलांस सिस्टम की मदद से जिका का सर्वेक्षण करने की सभी जटिलताएं और चुनौतियां, मुझे लगता है कि अगर हमें कोई बड़ी महामारी हो जाती तो हम उसका पता लगा पाते। इसलिए यह साल बहुत कम ट्रांसमिशन का साल रहा है पूरे क्षेत्र में, जिसमें मेक्सिको भी शामिल है। आपके जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं यह आंकड़ा जोड़ दूंगा। कई क्षेत्रों में अन्य आर्बोवायरस के साथ फैल रहा है और देखो, कई प्रस्तुतियों में उल्लेख किया गया है कि ज्यादातर संक्रमण दर बिना लक्षण के हैं।
ताकि उनमें लक्षण विकसित न हो। इसलिए वे निदान पाने के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधा या नजदीकी अस्पताल में नहीं जाते हैं। इसलिए हम खोजते हैं कि हमें जो दिख रहा है वह यह है कि हो सकता है कि यह चुपचाप घूम रहा हो बिना पता लगाए, तो यह कुछ ऐसा है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या मच्छर वहाँ है और उनके बारे में सूचित किया गया है? ट्रांसमिशन, बस लंबी आस्तीन वाली पहनने की सावधानी बरते और हल्के रंग के कपड़े जब आप किसी स्थानिक क्षेत्र में रहते हैं। बाइट्स, या अगर आप किसी स्थानिक क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं और मच्छरों से बचाव के लिए मच्छर भगाने वाली दवा ले रहे हैं। और मैं दूसरे सवाल पर जाऊंगा। डॉक्टर साइप्रियन, क्या आप अभी भी ऑन द वेबिनार पर हैं? आपके लिए एक सवाल है, क्या जिका वायरस के लिए जिम्मेदार हो सकता है? I don't know if अगली Sylvie is- महामारी I don't know if Sylvie is on. I don't या think हो she सकता है is, डॉग। but मारिया I वैन mean, केरखोव, yeah, मुझे answer- नहीं I पता mean, कि the वह answer है is of या course नहीं। yes. मुझे नहीं पता Or कि it सिल्विया could be चालू a है या virus. नहीं। I mean, मुझे I नहीं don't लगता कि think वह that है। pandemics are लेकिन caused by मारिया, क्या आप उसे viruses. लेना A चाहते virus हैं? is a मेरा respiratory मतलब है हाँ, pathogen. मैं जवाब दे Because सकता the हूँ way कि we मेरा मतलब है। usually इसका जवाब है transmit बिल्कुल between हाँ, या यह people and कोई others वायरस हो सकता pathogens है। has मेरा to be मतलब there, है but you बहुत could से have a लोग सोचते हैं pandemic that is कि महामारी caused by रेस्पिरेटरी a वायरस की वजह से vector, होती है। transmitted by a श्वसन vector, संबंधी like, रोगाणु, Aedes जिस तरह से वे aegypti, लोगों और इन रोगाणुओं के and बीच like कुशलता we've से seen संक्रमण करते हैं, with उसकी वजह से microcephaly. थ्रू Remember, द एयर। लेकिन excuse आपको me, महामारी हो सकती like है जो remember किसी we वेक्टर के saw this संक्रमण could की be a वजह से होती है। public health एडीज emergency एजिप्टी and जैसा एक international वेक्टर, और जैसा concern, हमने माइक्रोसेफली के साथ back देखा है। in याद है, 2016, माफ करना, जिका के साथ। 2017 because of its link with याद है, मैंने microcephaly. जिका And को पब्लिक हेल्थ as an इमरजेंसी के तौर organization, पर we need देखा to था। prepare. And the way that we know we 2016 have में preparedness अंतर्राष्ट्रीय is that चिंता we're के thinking विषय में of this in two different 2017 ways, but one of माइक्रोसेफली the के ways साथ we're लिंक thinking होने about की this वजह is से और एक transmission संगठन routes. के तौर So पर one of them is respiratory pandemic preparedness for हमें respiratory तैयारी करनी for होगी, और जिस तरह से हम lung-related महामारी की तैयारी कर रहे and हैं वह यह pandemic है कि हम इस preparedness बारे for में सोच रहे हैं flu, but we're also अलग अलग thinking of तरीकों this, से। लेकिन इस बारे with में हम जिन तरीकों के respiratory बारे में Zika, सोच रहे हैं it could be an उनमें से एक है unknown ट्रांसमिशन रूट। coronavirus. तो उनमें से We एक call है this सांस की disease महामारी। X, सांस के लिए which we तैयार should रहना। prepare हमने for कोविड the से बहुत कुछ सीखा है। pathogens that हमने we फ्लू के know लिए about महामारी से are पहले की also the तैयारी की ones that योजनाएं may बनाई हैं। emerge. So the लेकिन हम one आर्बोवायरस related के साथ भी to इस that बारे में is सोच yes. रहे हैं। यह जिका हो सकता है, यह एक अज्ञात आर्बोवायरस हो सकता है। हम यह रोग एक्स, हमें उन रोगाणुओं के लिए तैयारी करनी होगी जिनके बारे में हमें पता है, लेकिन वे भी जो उभर सकते हैं। तो इसके लिए लंबी हवा का झोंका यह है कि हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा यहाँ एक और सवाल है, ज्यादातर फ्लेविवायरस की तरह संक्रमित मच्छर जिका के लिए मुख्य रूट ट्रांसमिशन एक के दाईं ओर है। क्या अन्य तरीके भी हैं ट्रांसमिशन? डॉ Thanks, Diana. जिका वायरस, डॉक्टर वोंग। जूडी वन, क्या आप यह प्रश्न पूछना चाहते हैं? और कोई दूसरा सवाल है कि आप निदान कैसे करते हैं? आपके ऊपर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद डायना। तो 41वां सवाल यह है कि क्या ट्रांसमिशन के अन्य तरीके भी हैं? और हमें पता है कि ये हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है कि प्रसवकालीन संक्रमण होता है और सेक्सुअल ट्रांसमिशन। लेकिन मुझे लगता है कि जिका के संक्रमण का मुख्य तरीका अभी भी संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। और दूसरा सवाल निदान के बारे में है, इसलिए मेरे वीडियो और काम। हाँ, तो निदान के संबंध में निदान आम तौर पर सच होता है। मुझे लगता है कि पीसीआर मरीज का नमूना, आम तौर पर सीरम या यूरिन। धन्यवाद आपके जवाब देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यहाँ डॉक्टर के लिए एक प्रश्न है। सुदात दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र से हैं। जीका पर निगरानी स्थापित करने के लिए जीरो की योजना कैसे बनाई जा रही है? क्षेत्र आपके बारे में डॉ सुदात। खैर, फिलहाल ग्लोबल आर्बोवायरस इनिशिएटिव रूपांतरण जारी है, सदस्य देशों के बीच चर्चा के तहत। इसके साथ हम वायरल सर्विलांस स्थापित करेंगे। इस क्षेत्र में और संकलन के लिए रीजन डैशबोर्ड भी विकसित कर रहे हैं। यह डेटा एक ही जगह में है, तो लेकिन फिर भी सदस्य देश कर रहे हैं। छिटपुट शहर की वजह से करने के लिए बहुत सारी चीजें, मामले और साथ ही इसकी कम प्रचलित प्रकृति। यह सदस्य देशों की प्राथमिकता में से ज्यादातर नहीं है क्योंकि वे इस समय बहुत सी अन्य समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। हाँ,
Ricardo. या इसके लिए So आपका one, बहुत is बहुत there a धन्यवाद। specific antiviral or आपके जवाब के vaccine लिए available against Zika रिकार्डो, virus in मेरे Peru? यहाँ That's the सवाल first पूछने one. होंगे। And the तो एक, second one, is there evidence of microcephaly connected with क्या Zika जिका वायरस के specifically खिलाफ in the कोई first खास trimester, एंटीवायरल or या it could be वैक्सीन उपलब्ध है? transmitted in any संक्रमण, time यह period? पहला वाला Back है। to और you. दूसरा वाला, क्या जिका से माइक्रोसेफली के जुड़े होने का कोई प्रमाण है, खासकर पहली तिमाही में? या यह गर्भावस्था के किसी भी समय ट्रांसमिट किया जा सकता है? आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, वैक्सीन के संबंध में अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि विकास के लिए समुदायों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बीमारी का जल्द पता लगाने के लिए नए डायग्नोस्टिक टूल, समुदाय में वायरस के बारे में और माइक्रोसेफली के जोखिम के संबंध में जिका ब्राजीलियाई कंसोर्टियम के आईपीडीमा विश्लेषण में किसका डेटा इकट्ठा किया गया? 1,500 महिलाएं जिन्हें आरटीपीसीआर जिका वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। हमें माइक्रोसेफली का एक संघ मिला। गर्भावस्था की पहली तिमाही में माइक्रोसेफली का खतरा अधिक था। अगर गर्भावस्था की पहली तिमाही में संक्रमण की सूचना मिली हो, जिसका अर्थ यह नहीं है कि ए बाद वाला नहीं हो सकता, माइक्रोसेफली का निर्माण करें। एक और दिलचस्प बात यह है कि माइक्रोसेफली के सभी मामलों का पता नहीं चलता। जन्म के समय कुछ बच्चे सामान्य अवस्था में पैदा होते हैं। सर, I think we cannot hear. and they developed postnatal microcephaly. So they infected. Could you hear me now? मुझे लगता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट के जन्म के बाद की बात नहीं सुन सकते। तो उम्मीद के मुताबिक, लेकिन क्या आपने मुझे सुन लिया? नहीं, नहीं, अब हम आपकी बात सुन सकते हैं, लेकिन हमने आपको कुछ सेकंड के लिए खो दिया। ठीक है, तो एक और मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय संक्रमण होने पर हो सकता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि अगर पहली तिमाही में संक्रमण होता है तो यह ज्यादा होता है। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि माइक्रोसेफली हो सकता है। जन्म के समय पता नहीं लगाया जा सकता था कि क्या ऐसे बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं बिना माइक्रोसेफली के और उनमें प्रसवोत्तर माइक्रोसेफली विकसित हो जाती है। दिमाग को होने वाला नुकसान पहले से ही था। बेशक माइक्रोसेफली के बारे में इस दौरान भी स्पष्ट हो जाता है। जीवन का पहला साल। रिकार्डो के साथ इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा यहाँ एक और सवाल है। जिका के लक्षणों की नैदानिक प्रस्तुतियाँ डेंगू के समान है और चिकनगुनिया, जिसमें बुखार भी शामिल है, सरदर्द, आर्थ्राल्जिया, ऑर्बिटल में दर्द और दाने। क्या जिका के लिए कोई निश्चित क्लिनिकल एल्गोरिथम है? मैं इस क्षेत्र से ले जाने के लिए फिश दूंगा और इस बारे में और चर्चा करूंगा कि वे डिफरेंशियल डायग्नोसिस को कैसे संभालते हैं और क्लिनिकल एल्गोरिथम के बारे में उन्होंने अब तक जो भी शोध सीखा है वह कैसा रहा। जिका वायरस का इस्तेमाल करने के लिए खत्म। धन्यवाद। हाँ, मेरा मतलब है सर्कुलेशन के संदर्भ में जाहिर है कि यह पता लगाना खास तौर से चुनौतीपूर्ण है कि क्या है। तो साल हमने, जैसा कि मैंने संक्षेप में बताया था, हमने प्रमाणों को देखा और देखा कि अलग अलग चीजों की भविष्यवाणी कैसे की जाती है और जिका की तुलना करने पर लक्षण है और उनके होने की कितनी संभावना है बनाम एक अन्य अरबोवायरस संक्रमण या अन्य तीव्र ज्वर संक्रमण आदि। और फिर हमें कई संकेत और लक्षण मिले जिका के लिए। जैसा कि मैंने बताया, वे उपलब्ध हैं और मुझे उन्हें शेयर करके खुशी होगी। साथ ही मुझे लगता है कि हमें जिका के संदिग्ध मामले बहुत कम मिलते हैं, लक्षण खास नहीं है, और हमने गौर किया है कि बहुत सारे सर्विलांस किस पर केंद्रित होते हैं। प्रेगनेंसी के बारे में बेशक यह इससे जुड़ी स्थिति सबसे बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन नहीं, मुझे पक्का पता नहीं है कि मैंने इस सवाल का जवाब दिया है। हाँ, फिर मैं इसे आपको सौंप दूंगा। आपने किया।
or with arthralgia or any of the other symptoms. इसलिए ज्यादातर लक्षण इस क्षेत्र में मौजूद क्लिनिशियन से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जिसमें बुखार और दाने या आर्थ्राल्जिया या किसी अन्य रोगी को हो जाता है। लक्षणों को जानना वाकई मुश्किल है। यह जानना मुश्किल है कि इनमें से वास्तव में आर्बोवायरस वही हैं जहां वे हैं सर्कुलेटिंग, जैसा कि इनमें से ज्यादातर स्थानिक देशों में होता है। तो सही मामले के बारे में जानना जरूरी है। और मुख्य अंतर कौन से हैं? तो उदाहरण के लिए डेंगू के लिए आप देख रहे हैं कि बुखार मुख्य लक्षण है और आर्थ्राल्जिया और रेट्रोपेरिटोनियल दर्द है। फिर चिकनगुनिया के साथ आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। तेज बुखार के साथ गठिया गंभीर है, आर्थ्राल्जिया और बहुत गंभीर। और फिर हम जिका के साथ देखते हैं, जैसा कि उनका पहले उल्लेख किया गया था, मुख्य लक्षण दाने हैं। इसलिए बुखार अंदर नहीं है, तेज बुखार नहीं है, अन्य दो की तरह अभी भी चुनौतीपूर्ण है। इसलिए हमें डायग्नोस्टिक परीक्षण की जरूरत है और इसलिए हमें मॉलिक्यूलर पर लाभ उठाने की जरूरत है। डायग्नोस्टिक क्षमताएं जो कोविड-19 के लिए बनाई गई थी ताकि मॉलिक्यूलर ज्यादा किया जा सके। निदान और अलग करना कि कौन से वायरस फैल रहे हैं और कौन से वायरस है जिसकी वजह से उस खास मरीज में संक्रमण हो रहा है। और मेरा यहाँ एक और सवाल है जूडिथ वोंग का, क्या देश दूसरे देश में नमूने भेजते हैं अगर उनमें टेस्टिंग की क्षमता नहीं है? और फिर दूसरा वाला Yes, thanks, Diana. खासियत, So, with क्या regard जिका to सेरोलॉजी में the सुधार करने के लिए study कोई टीम या which कंपनियां हैं? facilitates some of this, क्या जूडिथ, अगर आप पर निर्भर करता है। and धन्यवाद डायना। तो जहाँ तक देश के परीक्षण की बात है, तो मुझे लगता है कि W.H.O असल में सुविधा, यह इनमें से कुछ है। और जब हम सिंगापुर में बात करते हैं, हम कुछ परीक्षणों में सहायता करने में भी मदद कर पाएंगे WHO के जरिए। और इस संदर्भ में दूसरा प्रश्न, मूल्यांकन। असल में ग्लोबल इनिशिएटिव के तहत हम कुछ खास तरीके विकसित करने पर विचार कर रहे हैं। निगरानी पसंद है या माफ करना, निगरानी नहीं, लेकिन उपलब्ध विभिन्न टेस्ट किट का मूल्यांकन। धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिरी दो सवाल और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो आकर्षक रहे हैं ऑल द वेबिनार के दौरान सवाल पूछना। तो आखिरी दो सवाल डॉक्टर के लिए हैं। रिकार्डो जिमेनेज, क्या जिका संक्रमण का ऑटिज्म से कोई संबंध है? सकारात्मक प्रभाव। Okay, thank you. Okay, दो और फॉलो अप के दौरान आप माइक्रोसेफली के अतिरिक्त मामलों की व्याख्या कैसे करते हैं? रिकार्डो आपके बारे में। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, Ricardo, maybe you can try turning off your video to these are improve two the two quality. important और points. मुझे First, I would लगता like है to कि हमने आपकी बात अच्छी तरह सुनी, क्योंकि शायद आप अपना वीडियो बंद करने की कोशिश कर Can you सकते hear हैं। me better now? Yes. तो we ये can hear you. ऑटिज्म Go के ahead with संबंध the में video गुणात्मक because we बिंदु don't है। see ठीक over है, to you. Okay, ठीक है। in relation क्या to आप all मुझे of अब this, बेहतर तरीके से we सुन are- सकते हैं? we- हाँ, हम आपकी बात सुन we सकते हैं। do आगे not बढ़ो। have शुरुआत से, business क्योंकि हमने with, आपको हमारी there टीम are को some खो दिया case था। ठीक है, reports ऑटिज्म के of संबंध में autism in हम children हैं, that हम are नहीं। यह exposed जवाब to अभी Zika तक है। viral infection during pregnancy, but so far we have ऑटिज्म no के study बारे में कुछ खबरें हैं comparing उन children बच्चों में जो born गर्भावस्था with के Zika दौरान जिका infection during वायरस के pregnancy संक्रमण के संपर्क में with आते हैं। mothers that लेकिन were अभी तक not हमारे children पास born with अध्ययन Zika की who तुलना were not नहीं है। infected. So this comparison is very माताओं से important. पैदा हुए So we बच्चों की can तुलना give गर्भावस्था के more दौरान figures संक्रमित to हुए the बच्चों से करना। वे pregnant माताएं जो बच्चे infection नहीं थी, उन माताओं से raised पैदा with हुई जो children संक्रमित with नहीं थी। autism. इसलिए यह So तुलना so करना बहुत far, जरूरी है। we तो cannot जिका के बारे में हमारे compare पास them और because स्पष्ट the विचार हो children सकता were है। not, संक्रमण असल में but the ऑटिज्म को बढ़ा studies देता are है। being performed. And in relation अब तक हम to यह नहीं कह सकते कि कोई microcephaly, एसोसिएशन है या नहीं। I mean, these children, they are born नहीं, without लेकिन अध्ययन microcephaly. इन Their रिलेशनशिप brain में किए जा development रहे हैं। only a few नेतल months माइक्रोसेफली after पोस्ट the करने के लिए। EMG, the brain image of these मेरा children. मतलब है They कि ये treat बच्चे them जिनका as जन्म माइक्रोसेफली के बिना but हुआ it था, was लेकिन not, दिमाग को होने not, वाले नुकसान, caused अगर आप by इमेजिंग देखते हैं, But इन then बच्चों की during ब्रेन the इमेजिंग, follow-up, if you दिमागी study नुकसान these पहले से ही children, है। their brain does not लेकिन grow ऐसा नहीं था, as इससे it माइक्रोसेफली does in नहीं other हुई। children. So if लेकिन you फिर can, फॉलो अप के दौरान, अगर हम इस छात्र को फॉलो करते हैं, उनका दिमाग वैसा नहीं करता जैसा वह करता है दूसरे बच्चों में, तो यह छोटा हो जाता है।
brain does not grow in the same speed नहीं, that ऐसा नहीं है कि दिमाग बन जाता है, बल्कि माइक्रोसेफली बन जाता है। in normal children. बन जाएगा, जाहिर हो जाएगा, क्योंकि दिमाग अंदर नहीं बढ़ता। वही क्षेत्र जो होना चाहिए था। बेशक for your answer and thank सामान्य thank all बच्चों में the speakers for your participation in this webinar. Now, धन्यवाद। let's इसके go लिए to our आपका बहुत activity बहुत धन्यवाद। lecture. आपका जवाब और इसमें शामिल होने के लिए धन्यवाद। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह वेबिनार अब मैं आपके सहकर्मियों के लिए फिर संभाल लूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद डायना, और सबको धन्यवाद। जब हम अपने आवंटित समय के अंत में आ रहे हैं, मैं आज हमारे सभी वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। हमारे दुभाषी आई इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, सभी W.H.O, ऐसे सहकर्मी जिन्होंने इस वेबिनार में काम किया है, ओपिनियन टीम, रिया डोंगफेंग, गैब्रिएला सुप्रिया और टीम की देखरेख डॉ. सिल्वी ब्रायन। आखिरकार आप सभी को आने के लिए और आपके आने के लिए धन्यवाद। सवालों के जरिए शानदार भागीदारी। इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग EPI पर उपलब्ध होगी, व्याख्या की 7 भाषाओं में वेबसाइट पर। अगर आप वेबिनार में आने वाले EPI के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं, कृपया हमारी मेलिंग सूची के लिए सब्सक्राइब करें। लेकिन बातचीत में लिंक दिखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप बुधवार को हमारे अगले वेबिनार में शामिल होंगे। महामारी और महामारी को रोकने के लिए EPI पर 13 सितंबर एक दूसरे दृष्टिकोण से समुदायों में उन्हें जल्द ही वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया जाएगा और डाक सूची में भेज दिया जाएगा। आपको फिर से धन्यवाद।